মুহূৰ্তৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাহ বেপাৰী দুখীয়া সাধাৰণ মানুহ বুলি তাচ্ছিল্য কৰে কংগ্ৰেছে পুনৰবাৰ কৈছো দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য যে মোক চাহ বেপাৰী বুলি তাচ্ছিল্য কৰে বেয়া পায় দৰিদ্ৰ দুখীয়া সাধাৰণ জনতা বুলি বেয়া পায় মোক তাচ্ছিল্য কৰে কংগ্ৰেছে এনে ধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী সেই ৰাহুল গান্ধীয়ে সমগ্ৰ দেশত যি প্ৰেমৰ দোকান খুলিছো বুলি কৈছে হে প্ৰেমৰ দোকান আসলতে মিছা কথাৰ ফ্যাক্টৰী কংগ্ৰেছে যি কয় মিছা কথা কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে যি কথা কয় মিছা কথা কয় কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি হেয়া হৈছে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ যি ঘোষণা আছে যি গ্যাৰান্টি আছে সেই সকলোবোৰ কেৱল মাত্ৰ ফেক গ্যাৰান্টি তাৰ কোনো হসা নহয় কংগ্ৰেছে যিমানে যি নকক কিয় কেৱল মাত্ৰ মিছা কথাই কৈ থাকে কংগ্ৰেছে আৰু মিছা কথা কৈ থাকে ৰাহুল গান্ধী এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যদি ৰাহুল গান্ধীৰ হত সাহস আছে তেনেহলে মোৰ সন্মুখলৈ আহক সন্মুখৰ পৰা যুঁজ কৰক কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী আৰু মই দেখুৱাই দিম মোৰ শক্তি কিমান এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ পলিটিক্যাল নিউজ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰেমৰ দোকান হৈছে মিছা কথাৰ ফ্যাক্টৰী এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰেমৰ দোকানত ফেক ভিডিঅ' দম খাই আছে জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যদি হত সাহস আছে তেনেহলে সন্মুখৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজ কৰক কংগ্ৰেছৰ সকলো কথা মিছা কথা সকলো ঘোষণা ভুৱা সকলো গ্যাৰান্টি ফেক কংগ্ৰেছৰ স্লোগানো ফেক নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাহ বেপাৰী দুখীয়া সাধাৰণ মানুহ বুলি তাচ্ছিল্য কৰে কংগ্ৰেছে আৰু তাচ্ছিল্য কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাহস আছে যদি সন্মুখৰ পৰা আক্ৰমণ কৰক মই দেখুৱাই দিম কিমান শক্তি আছে মোৰ এই মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচনী জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 পূৰ্বে দেশখন শেষ কৰি থৈ গৈছিল কংগ্ৰেছে এবাৰ বিজেপিয়ে 400খনতকৈ অধিক আসনেৰে পুনৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰি দেখুৱাই দিব এবাৰ জনতাৰ আস্থা বিশ্বাস কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ লগতে আছে বিজেপিকে বিচাৰে দেশৰ জনতাই কংগ্ৰেছে কাণ খুলি শুনিলক এয়া মোদী হয় মোদীয়ে কেতিয়াও ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি নকৰে ধৰ্মৰ ভিত্তিত মুছলমানক কোনো সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা নহয় এই মন্তব্য কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মোদীৰ শাসনকালত যোৱা 10 বছৰত দেশৰ কিমান উন্নতি হৈছে হেয়া ৰাইজে স্বচক্ষে দেখিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কংগ্ৰেছ যতে ক্ষমতাত থাকিব তাতে পঞ্চসূত্ৰৰ হৈতে শাসন কৰিব কি এই পঞ্চসূত্ৰ হেয়া বুজাই দিছে হেয়া হৈছে দুৰ্নীতি মিছা কথা ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি মাফিয়া আৰু পাৰিবাৰিক ৰাজনীতি এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ পঞ্চসূত্ৰ কংগ্ৰেছে দেশৰ পুৰণি দিনবোৰ ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু মই হেয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিও কংগ্ৰেছে এবাৰ কম আসন লাভেৰে ইতিহাস ৰচিবলৈ গৈ আছে এবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যেতিয়ালৈকে মোদী থাকিব তেতিয়ালৈকে সংবিধান শেষ কৰিবলৈ দিয়া নহব কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছে মোক তাচ্ছিল্য কৰে কাৰণ মই চাহ বেপাৰী আছিলো মই দুখীয়া সাধাৰণ জনতাৰ বাবে মোক তাচ্ছিল্য কৰে কংগ্ৰেছে 2014 পূৰ্বে দেশখন একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছিল আৰু সেই দেশখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছো আমি যোৱা 10 বছৰত দেশৰ কি উন্নয়ন হৈছে উন্নতি হৈছে হেয়া ৰাইজে স্বচক্ষে দেখিছে সেইবাবে জনতাই কেৱল মাত্ৰ বিজেপিকে বিচাৰে জনতাই কংগ্ৰেছক কেতিয়াও আৰু নিবিচাৰে কংগ্ৰেছৰ সকলো কথা মিছা কথা ফেক কংগ্ৰেছৰ সকলো ঘোষণা ভুৱা সকলো গ্যাৰান্টি ফেক কংগ্ৰেছৰ সকলো স্লোগানো ফেক নৰেন্দ্ৰ মোদীক চাহ বেপাৰী দুখীয়া সাধাৰণ মানুহ বুলি তাচ্ছিল্য কৰা
কংগ্ৰেছৰ যদি সৎ সাহস আছে তেনেহলে মোৰ সন্মুখলৈ আহক, সন্মুখৰ পৰা মোৰ সৈতে যুঁজ কৰক, এনেধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তদুপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফালৰ পৰা ভৱিষ্যতবাণী কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আটাইতকৈ কম আসন পাবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত। এনেধৰণে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে 400খনতকৈ অধিক আসনেৰে পুনৰ কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰি দেখুৱাই দিব। কংগ্ৰেছে কাণ খুলি শুনি লওক, এয়া মোদী হয়। মোদীয়ে কেতিয়াও ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ খেল খেলিবলৈ নিদিয়ে কংগ্ৰেছক। তদুপৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত মুছলমানক কোনো সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা নহয়। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ আমাৰ লগত আছে, কি কৈছে মন দি শুনক। और देश जो नई ऊंचाई पर पहुंचा है और देश के सामर्थ्य को मैंने भली भांति जाना है, समझा है, उस सामर्थ्य से मैं पुजारी बन गया हूं और देश के उस सामर्थ्य के आधार पर मैं गारंटी लेकर के आया हूं। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है, लेकिन मेरे पास अनुभव था, देश के सामर्थ्य को जानने पहचानने की शक्ति थी और मेरी गारंटी है आने वाले मेरे तीसरे टर्म में मैं हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना के रहूंगा। और जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तब उसकी समृद्धि, उसका सामर्थ्य, उसका लाभ वर्तमान पीढ़ी को भी मिलेगा और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। और ये काम की गारंटी लेके मोदी आया है। तीसरी बार सरकार जब बनेगी, 4 जून को नतीजे आएंगे, 100 दिन में क्या करना वो प्लान मैंने अभी से तैयार करके रखा है। आप गुजरात वाले जानते हैं, मैं जब भी यहां चुनाव में जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना, आटलो तो मारो हक बने कि ना बने। અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા, सीधा मोदी को जाएगा। और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से आपने गुजरात को इन सबसे बचा कर रखा। यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी, देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया, उन्होंने कोई सबक नहीं लिया,
और क्या किया? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना? चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे, राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया। साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा, इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। साथियों, अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं, ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती है तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे, वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, 2-2 हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे
एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारा एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की सुचिता, उस संविधान का संरक्षण, और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है, वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं, वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था, रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा? क्या चलेगा? क्या ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते।
कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप, मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। પણ ભાઈઓ, તમે ગુજરાતીઓ મને મોટો કરો છે ને તમે ચિંતા કરો, હા? એમનો ખેલ પૂરો જ આ વખતે। સાથીઓ, આ ચૂંટણીમાં મારે એવા સાથીઓ જોડે વાત કરવી છે, ખાસ કરીને જેમની ઉંમર 35, 40, 45 હવે, જે લોકો પહેલી વાર 18 વર્ષના થયા છે, મત મળ્યા હશે, એમને પહેલાની દેશની શું દશા હતી એની ખબર જ નહીં હોય। કારણ કે જેને હવે પહેલો વોટ મળ્યો હશે, એ હું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બન્યો એના પહેલા તો એ બિચારો 8 વર્ષનો હોય, 10 વર્ષનો હોય, 12 વર્ષનો હોય, એને એ વખતે શું દશા હતી દેશની ખબર જ નહીં હોય। એકવાર જરા આજકાલની પેઢી તો ગૂગલ વાળી છે ને, જરા ગૂગલ પર જઈને જૂના છાપા શોધજો। હેડલાઇન ચોરી, લૂંટ આ જ આવતી હતી, અને આજે શું સમાચાર આવે છે? આટલા પકડ્યા, આટલા કરોડ કબજે કર્યા, આટલાને જેલમાં નાખ્યા, અને એનો જ ફફડાટ છે આ। તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે। શાહી પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ જ નહીં આપીએ કે આ વખતે ત્યાં કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જ નથી। અહીંયા આપણા ત્યાં ગુજરાતના મોટા નેતા હતા અહેમદભાઈ। અહેમદભાઈ તો હવે રહ્યા નહીં। અહેમદભાઈનું પરિવાર ભરૂચમાં રહે છે। એમની દશા એવી, કોંગ્રેસને મત નહીં આપે। અહેમદભાઈનું પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે। કોંગ્રેસના એક મોટા નેતા બનતા સુધી ભાવનગરમાં જ રહેતા હશે, મત એમનો ભાવનગરમાં જ હશે, એ ભાવનગરમાં કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે। આ કોંગ્રેસની દશા છે। તમે વિચાર કરો। અને આ કોંગ્રેસને સંપૂર્ણપણે જ્યારે એમનો ચૂંટણી ઢંઢેરો આવ્યો ને, ત્યારે મેં કહ્યું હતું આ મુસ્લિમ લીગની છાપ છે આમાં। અને એક પછી એક પાના ખોલવા માંડ્યા છે। હવે એમણે માઓવાદી ઘોષણાઓ કરવા માંડી છે, નક્સલવાદી। એમણે કહ્યું છે હવે એમણે પાર્ટી તો બરબાદ કરી, હવે હું તો મર્યો તને મારું, એ મૂડમાં દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે। એમણે પાર્ટી તો તબાહ કરી દીધી, દેશને બરબાદ કરવા નીકળ્યા છે। અને એમણે એક નવો એમણે કહ્યું છે અમે એક્સરે કરીશું આખા દેશનો, કહ્યું છે ને આખા દેશનો એક્સરે કરીશું। એટલે તમારા લોકરમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે। તમારા ઘરમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે। તમારું બેંકમાં શું પડ્યું છે? એક્સરે। તમારા ત્યાં કઈ દાગીનો બાજરાના કે જવારના ડબ્બામાં રાખી મૂક્યો હોય, એક્સરે, પછી લૂંટી લેવાનું। આ એમણે મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું છે જે બધું છે, પછી જેની પાસે નથી એને વેચી દેવાનું। તમે આ ગરીબી વેચવા નીકળ્યા છો ભાઈ? આ દેશને તમે તબાહ કરવા નીકળ્યા છો? શું માંડ્યું છે તમે? તમે વિચાર કરો। એમણે બીજી એક વાત કરી। એમના એક ખેરખા બેઠા છે વિદેશમાં, એમણે ત્યાંથી સંદેશો આપ્યો અને જાહેરમાં કહ્યું આપણે ત્યાં દરેક મા બાપ એની ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ લાવવાના છે, તમારે એમને ખબર ત્યાં અહીંયા ઉત્તર ગુજરાતમાં તો માથે બેડલા મહેનત રહી છે અને એના પરિણામ घोषणा करो, हिम्मत हो तो। गया है राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की हिम्मत है तो सामने से वार करो। ये फेक वीडियो का गेम बंद करो।
कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण। अरे उनको मालूम नहीं, आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे, और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही। लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण, और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है, संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है, वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे, राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया। साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं, और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है।